السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان سے تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی نے ملاقات کی۔ کراچی میں ہونے والی اس ملاقات میں پارٹی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے کراچی میں ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر اور معروف کمپیئر طارق عزیز لاہور میں انتقال کر گئے۔ طارق عزیز نے پاکستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے کیریئر کا آغاز کیا۔ طارق عزیز کی وجہ شہرت معروف پروگرام نیلام گھر تھا، جو 4 دہائیوں تک جاری رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا معروف آرٹسٹ طارق عزیز شو کے بانی طارق عزیز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ طارق عزیز نے دہائیوں تک پی ٹی وی کے ذریعے پاکستانی عوام کو تعلیم اور تفریح فراہم کی۔ طارق عزیز اعلیٰ فنکارانہ صلاحیتوں کے حامل ادبی شخصیت تھے۔ اپنے پروگرام کو عوام کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ طارق عزیز لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ چند گمراہ کن عناصر سی پیک منصوبوں میں سست روی کا غلط تاثر دے رہے ہیں۔ 17 ارب 20 کروڑ ڈالر کے ML1 منصوبے پر کام جاری ہے۔ 3.5 ارب ڈالر کے پن بجلی کے منصوبوں پر بھی جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ چیئرمین سی پیک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ۔ ملک میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ 24 گھنٹے کے دوران 5,839 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,54,760 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 2,775 اموات، 58,437 صحت یاب۔ برطانیہ میں ڈیکسامیتھاسون سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے کورونا وائرس سے اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈیکسامیتھاسون کورونا وائرس کے خلاف پہلا علاج ہے۔ پاکستان میں ماہرین کی کمیٹی ڈیکسامیتھاسون کے استعمال پر غور کرے گی۔ WHO نے کورونا کے علاج میں اسے اہم پیش رفت قرار دیا اور کورونا مریضوں کے لیے خوشائن کہا ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طارق عزیز کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر اور معروف کمپیئر طارق عزیز لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ کورونا خطرے کے پیش نظر اسلام آباد کے سیکٹر I-8, 4 اور I-10-1-2 سیکٹر بشمول مراکز کو رات 12 بجے سے سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فارمیسی، اشیاء خودنوش، ہنگامی اور بنیادی خدمات کے شعبے کھلے رہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی شہریوں سے راشن اور ادویات کا مناسب انتظام کرنے کی ہدایت۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈی جی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقے 2 ہفتوں کے لیے سیل۔ کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔
डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप की तरसील जारी। 8वीं खेप में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अस्पतालों को सामान अरसाल किया गया है। सामान में 3,06,000 मुख्तलिफ इकसाम के मेडिकल और फेस मास्क, हिफाजती सूट, सर्जिकल गाउन, 15,000 हिफाजती कैंप्स और दीगर तिब्बी आलात शामिल हैं। तर्जुमान NDM में दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 82,56,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 4,45,000 से ज्यादा हो गई। 43 लाख से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में 22,07,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। हलाकतों के एतबार से ब्राजील ने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। 45,000 से ज्यादा अफराद हलाक। भारत और चीन के माबैन कई दहाइयों बाद खूनी तसादम की सूरत हाल पैदा हुई है। इस सूरत हाल की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्वा सोच है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाकिस्तान भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे NCOC, जहां मावन खुसूसी मोइद यूसुफ और जुल्फी बुखारी उनके हमरा हैं और इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन क्योंकि ये इतना अहम फैसला है, इस पे इतनी सोचो विचार हुई है, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मंतक क्या है जिसके नतीजे में हम इस बात पे पहुंचे हैं, कहां से हम शुरू हुए थे और क्यों हम इस फैसला करने की पोजीशन में हैं। तो पहले तो मैं आपको याद दहानी करा दूं कि 21 मार्च को जब हमने अपनी एयर स्पेस फिजाई हदूद बंद की थी, उस वक्त हमारे पास न तो टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान में थी, ना करंटीना का ऐसा इंतजाम था, बहुत महदूद हम टेस्ट कर पा रहे थे। और आपको याद होगा सारा जो वबा का फैलाव शुरू हुआ था वो पाकिस्तान के बाहर से आया था। उसमें जहाजों पे, परवाजों पे आने वाले कुछ लोग, क्योंकि उस वक्त मालूम नहीं था कि ये बीमारी इस तरह फैल रही है, और ईरान से कुछ जो ज़ायरीन का मामला हुआ था वो हम सबको मालूम है। तो उस वक्त मंतक यही बनता था कि हम इस वक्त वबा का फैलाव रोकने के लिए बाहर से ट्रैफिक बंद कर दें। लेकिन उस वक्त से हमने बतदरीज इजाफा किया, हमने अपनी पॉलिसीज बनाई, और ये आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं तकरीबन 75,000 से ज्यादा, बल्कि अब 75 से 80,000 लोग हम वापस ला चुके हैं 21 मार्च से आज तक, लगभग 3 महीनों में, बल्कि 2.5 महीनों में। और 60 से ज्यादा ममालिक हमने इसमें कवर किए हैं। इसका जो फोकस हमारा रहा है वो खलीजी ममालिक हैं, और वो जुल्फी बुखारी साहब आपको थोड़ी सी उसकी तफसील बाद में देंगे कि ऐसा क्यों रहा है। मैं आपको ये भी दिखा दूं स्क्रीन पे कि हमने मुख्तलिफ मरहलों में ये इजाफा किया है। आप ये देख सकते हैं कि पहले हमने शुरुआत की 3 अप्रैल से 13 अप्रैल सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट खोला, 150 के करीब पैसेंजर हम एक दिन में लाए, टेस्टिंग शुरू की, हमने करंटीना का इंतजाम किया, फिर बतदरीज बढ़ाते गए, 400 पे गए, 700 पे गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1900 से 2000 पैसेंजर हर हफ्ते अभी पाकिस्तान 1 जून के बाद से आए हैं। लेकिन ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं ये बदस्तूर ये बात जो है इसमें इजाफा भी हुआ है, और मैं आपको ये मुसलसल कहता रहा हूं कि हमें पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने तहम्मुल से, इतने सब्र से इंतजार किया। बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ हलकों ने ये बात शुरू कर दी कि आप एयरलाइन बंद कर दें, फ्लाइट्स दोबारा, ये बाहर से सारे जो हैं वो सिर्फ वबा ला रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वापस आना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वबा का फैलाव का जरिया पाकिस्तानी बाहर से आने वाले नहीं बने, पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बाहर से बहुत ज्यादा है। उस पर मैं बात करता हूं। मैं आपको सिर्फ चैलेंज बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें कोई जरूरत नहीं है जहाज बाहर से ज्यादा लाने की,
इस वक्त लगभग 98,700 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है एम्बेसियों के साथ 70 मुल्कों में, जिसने पाकिस्तान वापस आना है, जो हमारी स्ट्रैंडेड कैटेगरी में है। मजदूर तबका है, वीजा एक्सपायर हो गया है, किसी की कोई फैमिली में डेथ हो गई है। उसके अलावा अभी हमने प्रोसेस शुरू भी नहीं किया जो हमारे तालिब इल्म बाहर पढ़ते हैं, उनके पास भी ऐसे अखराजात नहीं है, उनके माँ बाप यहाँ पे हैं, परेशान हैं। तकरीबन 1 लाख से जायद अभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आना है। सो टोटल नंबर हमारा 2 लाख पे चला जाता है जिसको हमने वापस लाना है। अगर आप ये बात करते हैं कि जहाज बंद कर दें, तो फिर इन 2 लाख का कौन वाली वारिस है, इनका राइट, इनका हक कौन देगा? अब आ जाइए इस बात पे कि जी ये बाहर से वबा ला रहे हैं, तो जरा मैं आपको इसका भी ये दिखा दूं। जब नाजरीन ये मामला शुरू हुआ था, मैंने आपको खुद कहा कि 100% वबा पाकिस्तान के बाहर से आई थी। अब आपके स्क्रीन पे जो आदादो शुमार हैं जरा उसको देख लीजिए। 96% ट्रांसमिशन लोकल है, यानी ये पाकिस्तान के अंदर से हम एक दूसरे को बदकिस्मती से वबा लगा रहे हैं। सिर्फ 3% जो है शरह वो बाहर से जहाज पे आने वाले लोगों की है। इस 3% में भी मैं आपको ये बता दूं कि आज तक जितने पैसेंजर आए हैं हर एक पैसेंजर का टेस्ट हुआ है। जब टेस्ट हुआ है तो वो वबा का फैलाव का जरिया बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब टेस्ट का रिजल्ट आता है मुस्बत पॉजिटिव बदकिस्मती से, तो या वो करंटीना में जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, या उनको हम जैसे डील करना होता है एक मरीज को वो किया जाता है, या वो घर में करंटीना में जाते हैं। तो अभी तक कोई वबा का फैलाव हमारे जहाज पे आने वाले लोग नहीं बने। और अब सिर्फ 3% शरह ऐसी है जो पॉजिटिव आई है, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं। तो ये बात कि ये लोग बाहर से वबा ला रहे हैं, इसकी शरह इतनी कम है कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें ये एडवाइस किया है कि अब हर शख्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि हम अब जिस पॉलिसी पे जा रहे हैं उसमें तमाम हमारे एनसीओसी और तमाम, अभी इससे जरा पीछे रहिए, तमाम एनसीओसी और तमाम सूबे हमारे साथ मुशावरत में शामिल हैं। मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम एक नई जामे पॉलिसी ला रहे हैं। उसमें हमें वक्त इसलिए लगा कि तमाम फैसले वजीर आज़म साहब की हिदायत है कि मुशावरत और कंसेंसस से होंगे। तो हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी में वजीर आज़म के अंडर एक फैसला हुआ कि 2 जून के बाद से हर पैसेंजर का टेस्ट होगा, लेकिन करंटीना वो घर पे जाके करेंगे। सूबों ने हमें अब ये तजवीज़ की और रिक्वेस्ट की, और रिटन रिक्वेस्ट, हमें तहरीरी रिक्वेस्ट आई है तमाम सूबों की कि हम टेस्टिंग का सिलसिला सिर्फ उन लोगों के लिए रखें जो बीमार आते हैं, उनको खांसी जुकाम है, बुखार है, वरना हम ये टेस्ट ज़ाया ना करें, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन 96% है। वो टेस्ट हम उन लोगों के लिए रखें जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। इसलिए सूबों की तजवीज़ लेते हुए, उनकी रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए हमने ये नई पॉलिसी का फैसला किया है। वो मुख्तसरन मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब तफसील आपको बताएंगे। पॉलिसी अब ये होगी जी कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स आएंगे, एयरपोर्ट पे उनका थर्मल स्कैन और उनका बुखार का चेक किया जाएगा और उनसे सवालात किए जाएंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल से। अगर वो ये समझते हैं कि कोई मुसाफिर सिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई अलामात हैं बीमारी की, या कोई उनकी करीबी फैमिली है जो उनके साथ रही है जो बीमार है, तो उनका तो उसी तरह टेस्ट होगा जैसे पहले होता था। उनको करंटीना में या होटल में ले जाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और उनको रखा जाएगा जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। नेगेटिव्स को घर भेजेंगे, पॉजिटिव्स को डील करेंगे या अस्पताल में, या फिर घर में उनको करंटीना दी जाएगी। लेकिन जो लोग ठीक ठाक आएंगे, कोई सिम्टम नहीं है, वो घर जाएंगे, लेकिन 14 दिन की करंटीना में जाएंगे। मैं ये वाजे कर दूं, तमाम मुसाफिर 14 दिन करंटीना में जाएंगे अपने घरों में, या जो पॉजिटिव आएंगे जिनका टेस्ट होगा उनको हुकूमत फैसिलिटी में रखेगी जिनका जरूरी समझेगी। करंटीना का साइन करके पैसेंजर जाएंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो घर जाएं और वहां से फिर बाहर निकल जाएं। हमारे सूबे जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए ये चेक करेंगे। तो अब हमारी पॉलिसी नाजरीन कहां चली गई? बिल्कुल वहीं पे हम जा रहे हैं जहां हम बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, तफरीक खत्म कर रहे हैं।
सिम्टोमेटिक को टेस्ट करेंगे और हुकूमत उनको रखेगी या करंटीना में भेजेगी अपने। जो नॉन सिम्टोमेटिक ठीक आएंगे वो घरों में फिर भी 14 दिन करंटीना होंगे। अगर उनको कोई अलामात आएंगी तो वो जिस तरह कोई और पाकिस्तानी करता है, फोन के जरिए लैब में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और फिर उनका उस तरह इलाज होगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी हमारी पॉलिसी बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हर एक को 14 दिन घर में करंटीना करना पड़ेगा, लेकिन ना तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, ना सारों के टेस्ट होंगे, ना जो हुकूमत करंटीना देती थी वो होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 8 एयरपोर्ट हमारे ऑपरेट करेंगे, 6 अभी कर रहे हैं, कोयटा और सियालकोट की भी इसमें हम एडिशन कर देंगे। आखिरी बात ये कि अगर ये सवाल उठे कि अब तो आप लोग ला रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे, तो इनको देखेंगे कैसे? देखिए, पहले हमारे पास, हुकूमत के पास मुल्क की सतह पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद नहीं था। पहले हम ये नहीं कर सकते थे कि हर एक को ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी हिफाजत के लिए उनसे ये सवाल जवाब हो सके कि वो ठीक है, उनकी खैरियत वाफियत जो है पूछी जा सके। अब वो सिस्टम हमारे पास है, तो उसी तरह सूबे ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। वो उनको फोन करके भी पता करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो घर जाएंगे। अगर कोई करंटीना तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये जो नई पॉलिसी है नाजरीन, आखिर में मैं ये बयान कर दूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। हम अभी तक, मैंने आपको बताया है कि लगभग 2000 लोग ला रहे हैं एक दिन में, 14,000 लोग तकरीबन हफ्ते में। इस पॉलिसी से लगभग 40 से 45 हजार लोग हर हफ्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर, जो मैंने 2 लाख का फिगर दिया है, अगर हर कोई भी वापस आना चाहे तो 1 महीने में तमाम पाकिस्तानी हमारे वापस आ जाएंगे। लेकिन 40 से 45 हजार सिर्फ एक हफ्ते में आएंगे। और ये बाकी हेडलाइंस जो पाकिस्तान में आती थी उनको भी अब इजाजत होगी। हम अभी भी पूरे नंबर पे नहीं जा रहे। जुल्फी बुखारी साहब आपको बयान करेंगे कि अभी भी बड़ा कम है जो पहले नंबर होता था उससे, लेकिन तमाम एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी। एनसीओसी कमांड सेंटर अब फैसले नहीं करेगा कि किस पैसेंजर ने आना है, एम्बेसी से बात करनी है, नहीं। जैसे पहले लोग अपनी टिकट्स लेते हैं कमर्शियली, उसी तरह प्रोसेस होगा। वो कबात भी हट जाएगी, एयरलाइंस भी और आ जाएंगी, और 40 से 45 हजार इंशाअल्लाह हर हफ्ते हम पाकिस्तानी अब ला सकेंगे। अभी भी महफूज तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए हम ला सकेंगे। मेरी गुजारिश ये है और इल्तिजा है उन लोगों से जो वापस आए, ये आपके लिए हो रहा है। करंटीना आप अपना जो है 14 दिन पूरा करें। और दूसरी बात कि जो लोग हमारे समुंदर पार पाकिस्तानियों को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वबा उनसे आ रही है, मैंने आपको आदादो शुमार दिखा दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ना आज तक ऐसे हमारे पास आदादो शुमार आए हैं, ना हम आपको बाद में ये कहेंगे, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। उनकी शरह बहुत कम है। बहरहाल हम हर हफ्ते ये डेटा देखेंगे और हर हफ्ते फैसला करेंगे। जरूरत पड़ी तो फ्लाइट्स कम भी होंगी, ना जरूरत पड़ी ज्यादा भी होंगी। हम रिव्यू भी कर रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस भी कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। लेकिन खुदारा इनको स्टिग्मेटाइज ना करें। ये पाकिस्तानी है, उनका हक है वापस आना। महफूज तरीके से आज तक आए हैं, महफूज तरीके से आगे आएंगे। वो वबा का फैलाव का जरिया नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। जुल्फी बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मोईन यूसुफ साहब। मैं सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, अपनी तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि माजरत करना चाहता हूँ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उन लेबर से, ख़ास तौर पे जीसीसी मुल्कों में जो फंसे हुए थे। अब उनको 2, 3, 4 महीने भी हो चुके हैं वो वहीं फंसे हुए थे। जैसे मोईन यूसुफ साहब आपको बता रहे हैं कि हफ्ते में अगर हम यूएई का, अगर हमारा कुछ 80,000 बंदा फंसा हुआ था, वहाँ से 3 या 4 हज़ार बंदा हफ्ते में आ रहा था, तो बाकी किस फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जा रहे थे कि जब वो वापस अपने मुल्क नहीं आ सकते। तो मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का मैं माजरत करता हूँ कि आप लोग बड़ी तकलीफ से, दिक्कत से गुजरें, और हम सब ने देखा है, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने आपकी तकलीफ भी देखी है। इसके साथ साथ मैं ये कहता जाऊँ, जैसे मोईन यूसुफ साहब ने बोला है, मैं उनके ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स फिर से रिपीट नहीं करता, लेकिन 80,000 बंदा वापस आया है पाकिस्तान में। ये भी एक कोरोना के हालात के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ, एनसीओसी की, एनसीसी की, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब की।
اس 80,000 بندے جو واپس آئے ہیں اور جو 40,000 بندہ جو ٹوٹل جو اب تک ہمیں گنتی ملی ہے جو لیڈ آف ہے، میننگ کہ جو ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ اب تک نمبر صرف 40,000 تک آیا ہے. یہ نمبر یہاں رکے گا نہیں، یہ بڑھے گا، لیکن جہاں ہم ابھی ہیں یہ پھر بھی بہت کنٹرولبل ہے. 18 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے 9,70,000 نوکریاں باہر ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں. 9,70,000 بندہ تو 970,000 تو 10 لاکھ بندہ باہر گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 10 لاکھ بندہ 18 مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے. تو 80,000 کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کرونا ہے، ایوالونگ سچویشن ہے اور یہ چینج ہوتی رہے گی، اور ہر ملک، کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے اکنامک سرکمسٹانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں. پی ایم کی مہربانی سے، ان کی گڈ ول کی وجہ سے ہمارے UAE، سعودی عربیہ، قطر، ملیشیا، ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس لیے ہم نے اس 18 مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکارڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دیا ہے کہ جو باہر ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی. اس لیے ہم اس چیز میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا اور نوکریاں کھلیں گی، ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر مہینے 50 سے 70,000 بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی. اس وقت میں ہم نے جو 80,000 بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم 600 ڈیڈ باڈیز بھی واپس ریپیٹریٹ پاکستان میں ہم نے کی ہیں. اب تک ہماری کچھ 100 ڈیڈ باڈیز ابھی تک سعودی عربیہ میں بھی رہتی ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے PI کے ساتھ بات کر کے بندوبست کر رہے ہیں. جو ایئر اسپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فارمولا بنا دیں گے، اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے اس کا کچھ 25% ہم انشاءاللہ ایئر اسپیس کھولیں گے. اس 25% کا کچھ 70% ہم صرف GCC، UAE، سعودی عربیہ، قطر، کویت، ملیشیا، ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھنسا ہوا ہے کہ ہم جلد سے جلد ان کو واپس لے کے آئیں، جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراً لے کے آئیں. تو 70% ہماری فلائٹس اور خاص طور کے PIA کی وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معید یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ PM صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے، کل درد دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جلد سے جلد آئیں. لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں، اگر آپ اپنی 14 دن کی سیلف کوارنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے، لیکن اگر ہمیں ایئر اسپیس پھر سے بند کرنی پڑے کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں، تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو باہر آپ ہی کے کالیگز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے، ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ارسپانسبلٹی سے. تو پلیز یہ 14 دن کی کوارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں. صرف ان 14 دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تبھی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے. اس کے علاوہ آپ کو 14 دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں، لیکن ان SOPs کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں. تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد. ہم پوری ایک حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ رجسٹر کریں OEC کی ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی، آپ کا اسکل سیٹ کیا تھا، میسن تھے، ڈرائیور تھے، لیبر تھے، جو بھی آپ کے کام کی جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم OEC میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے. ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں
کہ اس میں بھی آپ لوگوں کی انکلوژن ہو, ایک ون آف ویور ہمیں ملے, اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام ہے, اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں. اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہوں, ایئر اسپیس کھلے, تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ کے لوگوں کے پاس ایکسپوجر بھی ہوگا. تو ہم آپ کو, ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں, جو لیڈ آف ہیں. جو لوگ, میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے, ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں, جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو لیو دی گئی ہے, کئی کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اکانومیز, لوکل اکانومیز, چاہے یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ملیشیا ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائے, آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی ایئر اسپیس کب کھلے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ واپس آئیں. جن لوگوں کو, جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہے, ان کو پہلا حق دیں واپس آنے کے لیے. ہم فلائٹس تو کافی زیادہ انکریز ہوں گی, لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے 25% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. جب آپ لوگ واپس آئیں, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز رجسٹریشن کرائیں. پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا جاب فیسلٹیز تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی, پاکستانیوں کو خاص طور پہ ایک اور بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی, فائنانس منسٹری کی, پی ایم صاحب کی گڈ ول بتاتا ہوں کہ 20.1 بلین ارب ڈالر پچھلے مئی میں ریمیٹنسز آئی تھیں. اس مئی میں کورونا کے ہونے کے باوجود بھی 20.6 ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. تو ایک 0.5% انکریز آیا ریمیٹنسز میں, ڈکریز نہیں آیا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہیں جو پچھلی ٹارگٹ جو پچھلے سال تھی, اور وہ بھی کورونا کے ہونے کے باوجود. تو میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. میں ان پاکستانیوں کا بھی آخر میں, معید یوسف صاحب کو دینے سے پہلے, آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یو اے ای میں ہیں, سعودی میں ہیں, قطر میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, جن نے, جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی, اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کی مدد کی. ہر ایک کمیٹی ممبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی کمیٹیز بنائی, اور جو پی ٹی آئی کی بھی جو کمیٹیز ہیں, انہیں جو تکلیف دہ وقت میں راشن, رینٹ, مفت کے ٹکٹس جن نے بھی بانٹے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پہ ان آرگنائزیشنز کا جو امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں, جو ہمارے اوورسیز ڈائسپورا کے ہیں, جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پہ, جن کو بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا. میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ اپڈیٹ ہمیں دینی تھی. میں واپس معید یوسف صاحب کو دیتا ہوں. شکریہ. جی, میں اس کا صرف سارے کچھ خلاصہ دے دوں تاکہ اس میں کوئی اور وضاحت کی ضرورت نہ رہے. پہلے تو میں بھی جیسے ہر پریس کانفرنس میں کرتا رہا ہوں, دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس تحمل سے سمندر پار پاکستانیوں نے کام لیا ہے.
میں صوبوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں وقت ضرور لگا لیکن تمام فیصلے مشاورت سے کنسنسس سے ہوئے اور یہ بھی جو فیصلہ ہے ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ٹیسٹنگ جاری تھی کرنٹینہ ختم کیا تھا پچھلے 2 ہفتے میں صوبوں نے ہمیں تحریری طور پہ تمام صوبوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس نئی پالیسی پہ جائیں ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا اور پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہوئے اور اب الحمدللہ ہم اس نئی پالیسی پہ چلے گئے یہ میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ کہ ابھی بھی یہ ریپیٹریشن فلائٹس ہیں پاکستان نارمل پہ نہیں گیا ہے جو ہماری پری کرونا سے پہلے جتنی پروازیں آتی تھیں بخاری صاحب نے آپ کو بتایا اس سے 25% کے قریب آئیں گی اس سے زیادہ نہیں یہ بھی نمبر بہت بڑا ہے اس کے مطابق بھی ہم 40 سے 45 ہزار لوگ 20 تاریخ کے بعد سے لانا شروع کر دیں گے 20 تاریخ کو اس پالیسی کا اطلاق ہوگا تب سے یہ شروع ہوگی ریپیٹریشن فلائٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں اور مقیم ہیں مسلسل تو پلیز ابھی گریز کیجئے ٹریول سے کیونکہ ابھی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2-3 ہفتے بعد کیا ہوگا لیکن بہرحال 40 سے 45 ہزار لوگ اور شیڈیولڈ فلائٹس ایک بہت مسئلہ پیسنجرز کو آ رہا تھا کہ ہم 10-10 دن کا 5-5 دن کا صرف دے پا رہے تھے شیڈیول اب تمام ایئر لائنیں اڑیں گی وہ جس طرح اپنے حسب معمول شیڈیول دیتی ہیں وہ دیں گی 25% کیپیسٹی پہ یعنی کوئی 40 سے 45 ہزار لوگ لگ بھگ 250 فلائٹس اس کے مطابق 20 تاریخ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم واپس لائیں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ میں دوبارہ سے مشکور ہوں سمندر پار پاکستانیوں کا صوبوں کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کیا ہے اس کے بعد یہ مشکلات انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائیں گی بہت شکریہ برائے وزیر اعظم ڈاکٹر موعد یوسف اور زلفی بخاری ان کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے NCOC اجلاس میں اور کہا کہ ایئرپورٹ کھولنے کے حوالے سے اور مسافروں کی واپسی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور مزید کہا گیا کہ وبا کے پھیلاؤ کا ذریعہ باہر ملک سے آنے والے پاکستانی نہیں بنے اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی السلام ناظرین پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید میں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا ناظرین انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر ایک مصروف ترین دن وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس بھی ہوا اور اس کے بعد پیٹرولیم کا جو بحران ہے اس پر بھی ایک اجلاس طلب کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہو رہا تھا سندھ کا سیشن بھی ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ہم نے آج دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اسپیچ کی اپوزیشن کی جانب سے تابڑتوڑ حملے اور اس کا جواب دیا گیا مراد سعید کی جانب سے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اس کے علاوہ سندھ میں ایک دفعہ پھر پورا ڈیٹیل جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اس سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے ہوا لیکن تمام جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام کی تمام ذمہ داری کرونا کی وفاق پر یا حکومت پر ڈال دی گئی ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ کرونا اتنا زیادہ یہاں پر پھیلا ہے دوسری جانب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم آج کراچی پہنچیں گے اب سے کچھ ہی دیر میں اور پچھلے 2 وزٹس ان کے کراچی کے پوسٹ پون ہو گئے تھے اور آج جب وہ کراچی پہنچیں گے 2 روزہ دورے پہ تو مصروف ترین دن گزاریں گے لڑکانہ بھی جائیں گے اور یہ ان کی جو اسکیجول رہے گا اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے جو کرونا کی سچویشن ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں اس پر بھی ڈسکشن ہوگا اور کراچی میں بھی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو بھی صورتحال ہوگی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ اس پر بھی غور ہوگا اور فیصلے لیے جائیں گے جو آج کا پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے کنول شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے MNA ہے PTI کی السلام علیکم کنول بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا عطا اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی سیکریٹری جنرل PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں السلام علیکم عطا اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی جی شگفتہ جمانی صاحب MNA ہیں پیپلز پارٹی کی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم شگفتہ جمانی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق صاحب السلام علیکم جی بہت شکریہ بہت سوچ سمجھ کے لیتی ہوں میں آپ کا نام اور پھر آپ کا پارٹی وغیرہ 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 اچھا کنول شوکت صاحبہ
वजीर आजम पाकिस्तान कुछ ही देर में कराची पहुंचेंगे और कराची वालों को बड़ा इंतजार था, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ तो ऐसा लगता था कि पीटीआई जो है वो कराची वालों को भूल गई है। लेकिन बहरहाल कराची पैकेज भी वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया, ये तमाम सूरत हाल भी। क्या एजेंडा क्या होगा आज की पॉलिटिक्स से कतई नजर? वजीर आजम पाकिस्तान है, कराची के काफी चक्कर लगा चुके हैं और जब से ये कोविड का इशू आया था हम मुख्तलिफ चीजों को देख रहे थे, उस दौरान भी वो फील्ड में निकले हैं। और आप ठीक कह रही है कि ये थोड़ा सा डिले जैसा कराची का, लेकिन उनके एजेंडा पे शामिल हैं। बहुत सारे मामला हैं जिसको देखना है उन्होंने, वो अब जाएंगे तो पता होगा, क्योंकि एक अच्छे इस टाइम पे हुकूमत को मैं समझती हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से दावत देती हूँ कि एक वजीर आजम आए हैं, मुल्क के वजीर आजम हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनके साथ बैठें, बात करें और अपनी जो रिजर्वेशन हैं उनको एड्रेस करें, बजाय इसके कि जो टीवी पे और मीडिया के उस पर जो तुंदो तेज किस्म के तीर और निश्तर बरसाए जाते हैं और सिवाय वजीर आजम की जात के और कोई उनको नजर नहीं आता इल्जाम तराशी के लिए। तो वो अब आ गए हैं, उनको बैठे हुए होंगे और बड़े हम्बल तरीके से बात सुनते भी हैं और एड्रेस भी करते हैं और इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल अच्छा कमल में आती हूँ आपको ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पर, ये उसको जरूर रखें और वो एड्रेस होंगी इनकी। चलो ठीक है, एड्रेस होंगे, लेकिन वो कौन कौन से मेन इश्यूज है जो एड्रेस होंगे उस पर भी मैं बात करूंगी और शगुफ्ता जुमानी साहब से बात करूंगी। लेकिन सर तारिक साहब से भी बात कर लूँ। तारिक साहब, बजट सेशन हो रहा है, लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली जो एक पैंडेमिक है कोरोना कोविड-19 उस पर भी बहस है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन चाहे वो PMLN हो, ऑपोजिशन चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, बजाय इसके कि आप तजवीज दें, बजाय इसके कि आपकी रिकमेंडेशन हो, यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर उठा के देख लीजिए या आज की बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर उठा के देख लीजिए, तमाम की तमाम जिम्मेदारी वफाक पे, हुक्मरानों पर या वजीर आजम पर। क्या लगता है कि वजीर आजम कोरोना लेकर आए? बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मदू किया। देखिए बात यह है कि तजावीज़ हमने दी हैं और अगर आप 1 2 3 करके मैं आपको बता सकूं, इंटरेस्ट रेट को कम करने के हवाले से, कमोडिटी प्राइसेस कम करने के हवाले से, मिनिमम वेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई वफाक की तरफ से, वो अनाउंस करने के हवाले से, इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारे पास पूरा एक एजेंडा मौजूद है, उस हवाले से बात की गई। उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए था, तजावीज़ हमारे पास हैं। और देखिए हमने तो अच्छे वक्तों में अभी कुछ नहीं बिगड़ा था तो मिसाके मईशत की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हाथ बढ़ाया था कि आए इस मुल्क को कौम की खातिर अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस मिटा के एक साथ बैठ के मिसाके मईशत की बात की जाए, एक ग्रैंडर और एक लार्जर एजेंडा पे एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो और फिर हम एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बचा सकते हैं, ये तो हमने तब भी ऑफर किया था। कोविड के मामले पे भी हम इनकी मीटिंग में खुद चल के गए थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जिम्मेदार हैं, जहां जहां कोताही नालायकी होगी ना अहली होगी वो हम पॉइंट आउट करेंगे। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस नहीं थे, हम कुछ खुशकिस्मत थे कि बाकी दुनिया में तेजी से फैल रहा था, हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे एयरपोर्ट्स पे जितने लोग आए उनका थर्मल गन से टेम्परेचर और बुखार चेक करके कहा गया कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई है। किसी एक बंदे का उस पर टेस्ट नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली क्वारंटाइन नहीं किया गया, वो पाकिस्तान के तुलो अर्ज में फैल गए। और अब सिचुएशन ये है कि हमारे लोकली ट्रांसमिटेड केसेस 92% हैं। मास्क की इफादियत पिछले हफ्ते बताई गई, भाई पहले दिन मास्क पहनते, लीड बाय एग्जाम्पल करते, लीड बाय एग्जाम्पल क्यों नहीं किया, खुद मास्क क्यों नहीं पहना। लॉकडाउन में शुरू हुए तो लॉकडाउन का और कर्फ्यू का फर्क, फुल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और अब सिलेक्टिव लॉकडाउन, तो ये कंफ्यूज लॉकडाउन था। आज जो कर रहे हैं जीपीएस मैपिंग की जाती, एक आम शहरी को आईटी के डैशबोर्ड पे पता होता कि ये स्पॉट्स हैं, इन यूसीज में बाकायदा नंबर ज्यादा है, यहाँ पे तवज्जो की जरूरत है, इन एरियाज को हम लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन हो रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है। लाहौर के काफी इलाके जो है वो सील कर दिए गए हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद का और सिंध का, कराची का भी आज वज़ीर आज़म जाएंगे, उनके साथ डिस्कशन होगा। इन चीजों पे मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, वज़ीर आला सिंध को जब हम सुनते हैं तो वो शिकवा करते हैं कि वफाक ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो कहते हैं कि हमें एक वेंटिलेटर भी नहीं दिया।
हमने सब कुछ अपनी मदद आपके तहत किया, फिर उन्होंने कहा कि हमें भीख के तौर पर, थोड़ा सा चंदा के तौर पर कुछ पैसे दे दिए गए, और ये तमाम चीजें हुई। दूसरे दिन एनडीए में जो है वो एक पूरी लिस्ट पब्लिक कर देता है, वो कहता है इतने वेंटिलेटर दिए, इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया। कहने का मकसद ये है कि इस पेंडेमिक के दौर में, इस शदीद ऐसी वबा जिसमें कोई ना रंगो नस्ल की कोई तमीज है, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन की कोई तमीज है, क्या ये मुनासिब वक्त है कि हम एक दूसरे पे इल्जामात दर इल्जामात की सियासत करें, तरकीब बनाए तरकीब की सियासत करें? और आज भी जो बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीच की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए कि इस वक्त कोविड-19 जो है वो बड़े उरूज पे है इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ एक प्रोविंस में नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान में है। आपको शायद याद होगा कि इस जैसे ही ये वबा फैली थी उससे सबसे पहले सिंध सूबा ऐसा था जिसने जो एक्शन में आया, जिसने लॉकडाउन किया। सबसे पहले सिंध ने एक्शन लिया और लॉकडाउन शुरू किया, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। हमने जब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, सीएम साहब की वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। गवर्नमेंट से क्या ताउन चाहिए था? जब आप लोगों ने पहला केस आया, आपने 2 दिन के लिए स्कूल बंद किए, फिर आप लॉकडाउन की तरफ गए, उस वक्त आपको फेडरल गवर्नमेंट से क्या ताउन चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी ताउन नहीं मिला। फेडरल गवर्नमेंट क्या था? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त हमने सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम लोगों को राशन उनके घरों तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप देखें कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, हम हकीकत और फिगर और फैक्ट्स पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की का जो बयान है वो रिकॉर्ड पे है कि हम सबको खाना और हम सबको राशन घरों तक नहीं पहुंचा सकते। भाई क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये स्टेट की ही जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके शहर में, आपके मुल्क में इतनी बड़ी वबा फैल चुकी है, आप उसको कवर करने के लिए लोगों को आपने घरों तक महदूद करना है। आपने सिंध गवर्नमेंट को दिया कि आपने सिंध गवर्नमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया अपनी मदद आपे किया। सीएम मुराद अली शाह की हर स्टेटमेंट जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। आखिर में उन्होंने हाथ जोड़ के, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि खुदारा आप घरों तक जो है महदूद हो जाएं, लेकिन मुनाफिकत और तासुब सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से इतना था कि कहीं वो जो है वो कोई अचीव ना कर ले। हम तो लोगों की जानें बचा रहे थे ना, हम तो आपकी जान बचा रहे थे, हम अपनी जान बचा रहे थे, हम अपने अजीजों की जानें बचा रहे थे। हम यही चाह रहे थे ना कि आप अपने घरों तक महदूद रहें, और जहां तक उनके वसाइल या हमें एहसास है रेडी वाले का, हमें एहसास है गदा गाड़ी वाले का, हमें एहसास है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो रोजाना की दिहाड़ी पे काम करते हैं, हमें एहसास है, हमने उनके घरों तक राशन पहुंचाया। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया? कभी स्मार्ट लॉकडाउन है, कभी ये लॉकडाउन है, और ये 12,000 जो आप कह रही हैं ना, उससे गवर्नमेंट कह रही है एहसास प्रोग्राम की बात गवर्नमेंट करती है ना। और देखिए ना, देखिए पहले कहते हैं कि सौतेली माँ वाला सलूक, लेकिन मैं यहाँ सौतेली माँ को नहीं बीच में लाऊंगी, यहाँ पर तो सौतन वाला सलूक हो रहा है सिंध के साथ। सौतन वाला सलूक ना हो जाए कहीं हमारी कार्रवाई से। हाँ, भले हज़फ हो जाए, लेकिन जो एहसास है वो ये एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डैमेज, बेनजीर के नाम को डैमेज करने के लिए आपने एहसास प्रोग्राम का नाम दिया। चले हमने कबूल किया, लेकिन उसका कोई तरीक़ेकार तो होता है ना। चले तरीक़ेकार जरूर डिफाइन करेंगी। आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उसका कराची में एक बड़ा शेयर, और अब जाहिर सी बात है पीटीआई का उससे ज्यादा बड़ा शेयर। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची गए, क्या आपकी रिकमेंडेशन है? कौन से वो इशूज हैं जिनको उनको एड्रेस करने की फौरी तौर पर जरूरत है, जो आप समझते हैं कि जो इन्होंने नहीं किए? देखिए नादिया, बहुत खुशी की बात है कराची वालों के लिए कि फाइनली एक बार फिर इमरान खान साहब विजिट के लिए गए हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में जो वादे उन्होंने न सिर्फ कराची वाले बल्कि सिंध के भी बहुत से लोगों के साथ किए, और उसमें आज तक क्या हुआ? ये तो ये कहा गया था कि हर महीने मैं कराची आऊंगा, मतलब मैं नहीं कह रहा,
یہ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि शिकायतें आपको इतनी है, मतलब आपसे मुराद आपकी जमात को, वजारतें आप रखे बैठे हुए हैं, एक और वजीर आपने शामिल कर लिया, लेकिन जब बात होती है तो फिर आप हुकूमत की चार्जशीट भी गिनवाते हैं। नहीं, देखिए फिर यही तो मुसीबत है। अब देख, आप मेरा मौकफ सुन लीजिए या अपनी बात बता दीजिए। देखिए जो मेरा मौकफ है वो आपने बोल लिया ना। नहीं, मैं सिर्फ एक बात की वजाहत चाहती हूँ कि बार बार जो ये होता है ना कराची एंड सिंध, तो फिर ये भी कहें कि लाहौर एंड पंजाब, तो ये कराची सिंध का शहर है। पे बोलूंगा, आप बोले, अब आप बोले। मैंने थोड़ा सा करेक्शन, ये काम ठीक नहीं, मैं करेक्शन करना चाह रही थी, मेरे साथ मैं करेक्शन करना चाह रही थी। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। करेक्शन तो मैं हर चीज पे सबकी कर दूंगा, मुझे उससे मेरे से कोई करेक्शन नहीं कर सकता। मुनासिब ये रहेगा कि जब भी कोई बोल रहा था मैंने किसी के दरमियान में, हालांकि मुझे हर बात से इनकी जो है वो इख्तलाफ होगा, लेकिन वो इख्तलाफ मुझ तक है। ठीक है, तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपकी बारी आए, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन दर्मियान में जरा ना मुनासिब नहीं है। बात कीजिए प्लीज। मेरे ख्याल में मेरा टाइम इनको नहीं, ये तो नहीं ना होगा इस तरह। वजह कि मैं बहुत आसान से थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। अब जब आप दरमियान में रोक देंगे तो उसमें बात ही नहीं कर सकूंगा। अच्छा, अब जी देखिए बात ये है कि जिस वक्त में वजीर आजम साहब ने कहा हर महीने में आऊंगा, वो क्या हुआ उसके बाद, नंबर 2। दूसरी बात पर आते हैं, जब ये कहा गया कि हम पैकेजेस देंगे तो वो पैकेजेस कहाँ गए? ठीक है, फिर ये कहा गया कि अच्छा जी सिंध के, अब हमें तो कोई एतराज नहीं है, आप गवर्नर साहब के थ्रू देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर के थ्रू देते हैं, आप किसी को स्पेशल एडवाइजर बना के देते हैं, हमें कतई तौर पर कोई एतराज नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो पैसा आप पूरे सिंध को दे रहे हैं उसमें से, ठीक है कराची के लिए भी है, सिंध के दूसरे शहरों के लिए भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने कमिट किए थे। आपका जो सवाल है उस पर मैं आ जाऊं, K4 में जितने पैसे देने चाहिए थे क्या आज तक दिए गए? ये मैं वो बातें करना चाह रहा हूं ताकि वजीर आजम साहब जाएं तो एटलीस्ट ये 4 चीजें हैं सिर्फ, अगर इनको वो देख लें बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। सामने देखिए कोई तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन ये उनके वादे हैं, ये उनको इस बात को याद रखना चाहिए। अब वो ना रखे तो क्या हो सकता है? ग्रीन लाइन वाली बात है वहां की, वो आज तक कहां बसे हैं जो देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, हम सुन रहे हैं। उसके बाद लियारी एक्सप्रेस वाले रोड का मामला है, और ओवर एंड अबव जो सबसे बड़ा इस वक्त में आखिरी बात है, ये स्टील मिल का मामला है। 8,956 वर्कर्स को आपने निकाल दिया और अब आप कराची जा रहे हैं तो जाकर वहां पर किस तरह से 14 MNA बने हैं, 30 MPA बने हैं। आज सब लोग पूछेंगे, तमाम बातें आप लोग फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं? जनाब मैं तो उनके सामने भी करता हूं, मैं तो वजीर आजम साहब आ जाए तब भी सब करते हैं। कब की हर कैबिनेट में? लास्ट टाइम आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कब ये बात की? ये अभी लास्ट वीक भी हमारे जो हैदराबाद के MNA हैं उन्होंने बिल्कुल खड़े होकर समझ साहबा कुछ एतराजात हैं, बल्कि कुछ नहीं है, बहुत सारे एतराजात हैं। एतराजात की एक पूरी फहरिस्त है, पूरी चार्जशीट है। अब मेरा ख्याल है इतना टाइम का फिर आपका भी हक है बनता जी। 3 वर्सेस 1 है नादिया, फिर अब तीनों का जवाब दूं या एक एक करके दूं? अब आप चारों का जवाब दे, इंक्लूडिंग मी। अच्छा देखिए जी, मुझे इको आ रहा है, जरा इसको मैनेज कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि शाइस्ता जुमानी साहिबा को याद करा दूं, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के आप खुद मुख्तारी और सूबे की हुकूमत जिम्मेदार है, और आपके दावे रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है, हम सबको घरों में पहुंचाएंगे राशन, इसलिए हम लॉकडाउन लगा रही हैं। और बिल्कुल मोदी की तरह का लॉकडाउन हार्श किस्म का उन्होंने लगाया, और मुख्तलिफ वज़रा इनके बयानात देते रहे। सिर्फ CM ऑफिस से ही हमें बाहर तो कुछ नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। कोई कहता है 1 लाख, कोई कहते हैं 2 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया है, लेकिन 11 यूसीज का रिकॉर्ड नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुला के सवाल किए तो वहां पर ये जवाब देने से कासिर थे। प्रॉब्लम सारी ये है कि लॉकडाउन आप जरूर करें, कर्फ्यू भी लगा दें, जो मर्जी, लेकिन आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। 12 सालों से आपकी हुकूमत है और माशाल्लाह आपके इतने रिकॉर्ड हैं अच्छे काम करने के, गवर्नेंस के। वो दावे इतने सारे बिलावल साहब भी खड़े होकर असेंबली में करते हैं, बाकी भी सारे जुबानी तो बहुत गिनवाते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड। और उस पर ये हालात है कि आज एक वीडियो आई है कि खातून ने कचरे के ढेर पे जाके और बच्चा पैदा किया है, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल जो उसी के बाहर ही हॉस्पिटल के, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ ताले लगे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स होते नहीं है, एम्बुलेंस किसी पूरे सिंध में कोई एक भी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। जो भी चल रही है NGOs के थ्रू चल रही है, या भला ईदी साहब का उनके थ्रू चल रही है। हुकूमत की तरफ से कोई एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं है। ठट्ठा में 7 बच्चों की वफात होती है, ना वहाँ फर्स्ट एड आ सकती है, ना एम्बुलेंस आती है, और ना वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होता है।
इसी तरह 85 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 का स्विफ्ट कैश ट्रांसफर हुआ। एक एक बंदे, एक एक खानदान की खातून का नाम मौजूद है ट्रांसपेरेंट तरीके से। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि जी पीटीआई का वोटर है या किसका वोटर है, सिंध का बाशिंदा है और इसलिए वहां तक गया है। किसी ने कोई ना पूछा है, ना किसी एमएनए को ठेके दिए गए, ना किसी एमपीए से पूछा गया। जो रिकॉर्ड में आया नादरा के और जो उनकी वेरिफिकेशन हुई उसके तहत उन्होंने वहां पर कैश ट्रांसफर किया और रिकॉर्ड भी वो अवेलेबल है उसका। अच्छा, इसमें कोई बेनजीर साहिबा की तस्दील नहीं की क्योंकि बिस्ट या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम का एक सेगमेंट है। एहसास के अंडर 135 प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, जिनमें से BISP इज वन पार्ट, जिसके 75 लाख पहले वो मेंबरान थे। अब फर्दर उसी डेटा को एनहांस करके 1,60,00,000 के करीब लोगों को मजीद इसके अंदर ऐड कर लिया गया। अतार साहब ने बड़ी आइडियलिस्टिक बातें की, बड़ी अच्छी इनकी सजेशंस हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 आना शुरू हुआ है उस वक्त कैपेसिटी क्या थी? या तो ये आईटी में इतनी यहाँ पे तबाहियां मचा के गए होते ना कि हमारे हर विलेज काउंसिल के लेवल तक हर आईटी से इक्विप्ड होता और फिर आपने यहाँ पे जो जो सजेशंस दिए वो मौजूद होती। हाल ये था कि सिर्फ 2 लेबोरेटरीज थी टेस्टिंग के लिए, और जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं वो भी सबको पता है। स्टेट ऑफ द आर्ट के वही हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इनकी पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने इलाज करवाना पसंद नहीं किया। तो इसलिए ये बातें मत करें। ये तो इसको बहुत दफा बता भी दिया गया है कि क्या रीजन थी, किस तरीके से हुआ है, और पूरी दुनिया जो है वो इसको मुकाबला भी कर रही है। किसी ने भी कोशिश की है, रोक नहीं सके। सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने सार्स को पहले इनकाउंटर किया हुआ था, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं जिसमें कोरिया शामिल है, जिसमें ताइवान इस साइड पर, चाइना भी, जापान भी, मास्क सिर्फ उन्होंने लगाए क्योंकि आपके WHO ने शुरू में ये स्टेटमेंट्स दी थी, शायद आपको भी याद होगा क्योंकि आप इससे गुजरे भी हैं, कि ये हैवी होता है, सरफेस टू सरफेस इसकी ट्रांसफर ज्यादा है, ये एयरबोर्न नहीं है। और शुरू में आपको शायद याद होगा कि बाकायदा अनाउंसमेंट आई थी कि मास्क की जरूरत नहीं, मास्क आप सर्जिकल आप उनके लिए रहने दें, डॉक्टर हजरात के लिए जिन्होंने कोरोना के पेशेंट से डायरेक्टली डील करना है। आप अपने हाथ ज्यादा धोएं और हाथ गंदे हो तो नाक और मुंह तक मत लेके जाएं। तो इसलिए हर चीज का ब्लेम करना जो है वो लीडरशिप को अच्छा नहीं है, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है। आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जरा अतीक साहब की बात बता दूं। हमारे सलाउद्दीन साहब हैं, हम मेरे से आगे ही बैठते हैं असेंबली में, सारी MCM के मैं बिल्कुल साथ में उनकी पड़ोसन हूँ और हर वक्त मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत चल रही होती है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने खड़े होके मुबारकबाद दी, वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी जिसका हमने यहाँ ले किया था स्टोन, उसका इशू ये आ रहा था कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है, सॉरी ये जो सिंध हुकूमत है, ये चाहते नहीं है कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बने। तो जब तक ये नहीं साइन करेंगे यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। तो हमने उसको चेंज करके इंस्टीट्यूट में तब्दील किया है और इस दफा उसके लिए एलोकेशंस की गई हैं और उसका उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके वजीर आजम से का शुक्रिया भी अदा किया, PTI की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। तारिक साहब से बात कर लूं। इकबाल साहब है, बड़े सीनियर है, एक मजा दिया, उन्होंने भी PTI की हुकूमत के साथ जिस तरह वो चल रहे होते हैं, तो हमारे MNA जितने भी हैं हमारे MQM के, उनसे तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छे तरीके से वो खुश हैं। और जो वजीर आजम ने अपॉइंट किए हुए हैं, एक मिनट नादिया, वजीर आजम ने नुमाइंदे अपॉइंट किए हुए हैं, असद उमर साहब इसको डील कर रहे हैं। आपका ये जो अच्छा खैर, मैं जरा अतौला तारिक साहब जो बात है आपने सेंटेंस पूरा करने दे। ये केप का जो बात करूँ तारिक साहब से भी, और ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है इसकी भी एलोकेशन भी तकरीबन 25 अरब की हो चुकी हुई है काफी अच्छे से, और उस पर आगे भी प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं प्लानिंग का डील करती हूँ और ये क्वेश्चन मैं 6 दफा डिफेंड कर चुकी हूँ। आपको सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, आपने मेरे ख्याल हर चीज का रिस्पॉन्ड किया है। जरा तारिक साहब, जो पुरानी बातें आपने पिछली गिनवाई हैं, वो वजूहात गिनवाई हैं, वो अपनी जगह। अब आ जाते हैं जरा करंट स्टेटस पर। अभी सूरत ये है कि लाहौर के इलाकों को सील किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी ये एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकता कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कोरोना का सफाया कर दिया और मुकम्मल तौर पर। इस वक्त जो चीजें हैं उसमें क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अभी जो हुकूमत स्टेप्स ले रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन और जहां जहां ट्रेसिंग और फिर कॉन्टेक्ट एंड ट्रेसिंग, उनको फौरी तौर पर ट्रेस करके और वो इलाके सील कर देना, इज इट ओके?
मुझे तो लगता है कि वो मुनीर न्याजी साहब ने शायद इमरान न्याजी साहब के बारे में कहा था कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। नी जर्क रिएक्शन और इकदाम तब लेना जब मामला हाथ से निकल गया हो। तो मुझे ये बताइए कि इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, मैं आपको कोई यूरोप, इटली, स्पेन की मिसाल नहीं दे रहा, मैं वियतनाम की मिसाल भी नहीं दूंगा और मैं स्कैंडिनेविया में स्वीडन की मिसाल भी नहीं दूंगा। हमारे गिलगित बल्तिस्तान और एजे के दोनों में अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। टोटल केसेस 1700 हैं, 1100 गिलगित में हैं, कुछ 600 आज़ाद कश्मीर में हैं। आपके इस्लामाबाद में 8000 केस हैं, 25 किलोमीटर का शहर है। तो मुझे ये बताइए कि ये कंफ्यूजन, ये तरजीहात का फुकदान, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अभी भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूं कि पंजाब हुकूमत का इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम साहब चेयर कर रहे थे। वजीर आजम साहब ने लॉकडाउन ना करने की तजवीज जो है वो उनकी अपनी तजवीज थी। अभी भी निजी तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा से पूछा जाए, सीनियर वजीर हैं अलीम खान साहब, ये अगर ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से भी बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए था, क्योंकि मामलात जो हैं जिस तरह से हॉस्पिटल फिल टू कैपेसिटी हैं। और मुझे नादिया साहिबा सिर्फ मेरी एक तजवीज है, देखिए हम पाकिस्तानी हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब भी पाकिस्तान है। तो ये सिंध को टारगेट करना, वफाक का दिल बड़ा होता है। आप हुकूमत में हैं, इकाइयों को और तमाम सूबों को साथ लेके चलिए, लोगों को मुत्तहिद कीजिए। डिवाइड आपकी तरफ से क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन अगर इस पे बात करती भी है तो देखिए आप ऑपोजिशन को जरूर इस पे तनकीद का निशाना बनाएं, मगर आपके वुज़रा वो इस तरह के तीर बरसाएं, ये मुनासिब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सिंपल सा काम था, मुझे कोविड हुआ, आगाही मुहिम कोई नहीं है कि आपको कोविड हो तो आपने क्या करना है। आपको हुकूमती ओहदेदारान की इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी और मुतजाद आराम मिलेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अभी तक एसओपीज की कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट में लिस्ट जारी नहीं की कि इन एसओपीज की वायलेशन पे जो है वो एक्शन होगा। ये सबको पता है मास्क पहनना है, ये सबको पता है हाथ धोने हैं, ये सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मगर आपने एसओपीज के लिए क्या किया? और आपने देखिए टेस्टिंग के हवाले से बात जरूर ले लूंगी, लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद है उनसे भी ये वजह पूछी गई है जो कि बड़ा एक्टिव भी है, तमाम चीजें देखे, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें जो टेस्ट हो रहे हैं किसी भी सूबे से भी ज्यादा वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और शायद ये हकीकत है कि अगर एक बड़े पैमाने पे मास लेवल पे टेस्टिंग शुरू हो जाए तो जितने हम केसेस इस वक्त डेली बेसिस पे ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो उसका नंबर चला जाए। मैं आपको अर्ज करूं, देखिए इस तरह तो फिर मैं आपको बताऊं, जो टेस्टिंग की बात मेरी बहन कंवल साहिबा ने की, बात ये है कि पंजाब में आप बाकायदा एस्टिमेट लगवा लें, हमारे दौर के बने हुए पीसीआर लैब में 80% टेस्ट वहां पे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। आपकी कैपेसिटी नहीं थी तो मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ की वबा बड़ी लेट आई है। आप एनडीएमए का आज का भी स्टेटमेंट है कि सूबे जितनी टेस्टिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, टेस्टिंग किट्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, जो मेरी बहन कंवल साहिबा ने बात की, अगर आप कहते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, इधर तो वबा 2 महीने लेट आई, तो आपने उसकी एंटिसिपेशन में, या आपको ये खदशा नहीं था कि यहाँ आनी है, तो आपने टेस्टिंग किट्स टाइमली क्यों ना इंपोर्ट की? ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए हुकूमतें जो होती हैं वो डोंट्स नहीं बताती कि जी ये काम हम नहीं कर सकते, वो डूज बताती हैं। एंड इवन दो ये कंपैरिजन एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं होगा। वो एक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कंवल को रिस्पॉन्ड करेंगे या मैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा से बात कर लूं? कोई कर दे, वरना फिर तीनों का इकट्ठा हो जाता है। प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि से पूछती है, पहले सबका मालूम करके फिर उनसे मालूम। ठीक है, मैं हाँ मुझे सिर्फ 1 मिनट रिस्पॉन्ड करने दें, लेकिन इस्लामाबाद पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में आते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाख कराओ, वो एक ही जवाब दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट है, आपका वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है, वो रिप्लाई करेंगी। मैंने कहा अगर वो कोई रिप्लाई कर देंगी तो फिर मैं आपका ले लूंगी। कमल 5 मिनट प्लीज। जी मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामाबाद हब है एक्टिविटी का, सारी गवर्नमेंट के लोग यहाँ, मुलाजमीन यहाँ बैठते हैं, ऑफिसर्स यहाँ पर है। एक गिलगित को बल्तिस्तान और कश्मीर का इस्लामाबाद से कंपैरिजन नहीं हो सकता। एरिया वाइज तो आप बेशक कर लें, ओके थैंक यू कमल। मैं जरा जमानी साहब से बात कर लूं, मैं चाह रही थी कि एक एक करके आप जवाब दे दें ताकि वो पाइल अप ना हो। क्या है ये शहर अगर आप बंद करेंगे मैं आती हूँ, वापस आ रही हूँ। कारोबार कैसे चलेगा?
ठीक है, मैं आपसे वापस आ रही हूं। मेरी कोलीग ने ये बात की, जब आपने उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने कहा कि 18th मेरी बात पे उन्होंने जवाब दिया 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबे खुद मुख्तियार हैं और सीएम सिंध पे इन्होंने बात की। तो मैं अगर ये 18th अमेंडमेंट को मानते हैं तो 18th अमेंडमेंट में जो एनएफसी अवार्ड है, जो हमारा राइट है, मेरे सिंध का राइट है, इनके सामने वही सोचन वाला सवाल आ जाता है ना कि बाकी सूबे इनको नजर नहीं आते, ना केपीके इनको नजर आता है, ना इनको बलूचिस्तान की मासूमियत नजर आती है, ना इनको पंजाब नजर आता है, जो इस वक्त बिल्कुल टॉप पीक पे है खौफ के।